آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ ضرور اپنے ہاتھ میں لیں۔ شعربانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، آئے ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ ان دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، آج صبح ہم لینٹ سیزن کے اس 5ویں اتوار میں داخل ہوئے ہیں، تاکہ ہم خداوند کی حمد و تعریف کریں، خداوند کا شکر ادا کریں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خداوند کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ تھوڑی دیر ہم خاموش رہیں گے، موجودہ حالات کو، خاندانی حالات کو، کلیسیائی حالات کو، قومی اور ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت سے ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان کی طرف اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے اور ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم گیت نمبر 174 گائیں پہلے۔ ہتھاں پیراں چکلنے زبینے ہے دل یسوع پیارے، ہائے ہائے تیرے دکھ نے بارے۔ اس لیے کہ آج کا جو اتوار ہے، 5واں اتوار لینٹ کا، یہ آگاہی ہے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے صلیبی
ताकि हम खुदा यीशु मसीह के सलीबी सफ़र, सलीबी दुखों से बेहतर तरीके से आगाह हो सकें और अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लाएं। इन गीतों के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा के खादमों ने ये जो गीत हमारी ज़बान में लिखे, पहला गीत जो हमने पादरी हिस्कील सरोश का लिखा हुआ गाया था, ये गीत हम बहुत सालों से गाते आ रहे हैं। हत्था पैरा चकेलने ज़बीन है दिल यीशु प्यारे, ये हमें याद दिलाता है कि मेरा और आपका निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह मेरी खातर, आपकी खातर उसने सलीब का दुख सहा। और इस बात को अपने जहन में रखें कि ये मौसम तौबा का मौसम है, तब्दीली का मौसम है, ईमान की मजबूती हासिल करने का बेहतरीन मौका है, मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। आए हम दुआ मांगें और शुक्रगुजारी करें। कोई भी दुआ कर सकता है चंद अल्फाज में। आज इस पाप दिन के लिए, सब्र के लिए और तेरे नाम की तारीफ कर, क्योंकि तू अव्वल है, तू आखिर है, तू हरावल है, तू जलावल है, तू अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। ज़मीन के नीचे इख्तियार सिर्फ तेरे पास है और सिजदा करना और इबादत करना सिर्फ तुझे ही रवा है। हम अपनी ज़ुबान से, अपने होठों से तेरा इकरार करती हूँ कि तू जिंदा जलालबाब है। खुदावन, तेरी दी हुई एक एक नेमत के लिए, एक एक बरकत के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए खुदावन की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ खुदावन, सबसे बढ़ के खुदावन तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने उन्हें सेहत दी, तंदुरुस्ती दी और फिर आज अपने खुदावन तक पे खुदावन उनको फजल बख्शा ताकि वो खुदावन तेरे हजूर में झुक सके। खुदावन, तेरे बंदा के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। अपने बंदा को और ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल कर और अपनी बरकतों से माला माल कर। खुदावन, ऐ खुदावन, जितनी जाने यहाँ पे मौजूद हैं खुदावन, एक एक जान के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। इनकी हिफाजत और निगहबानी कर और अपने नाम और जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल कर। खुदावन, ऐ खुदावन, हम सबके साथ हो, हम सबकी बड़ी मदद और हिफाजत का। खुदावन, तेरा पाक रो, तेरे पापों की आग को यहाँ पे मांग लेती हूँ। ऐ खुदावन, जिन खादमों ने खुदावन तेरे लिए दी ये ज़बूर लिखे हैं ताकि हम इनको गा सके। खुदावन, तेरे इस फजल के लिए भी तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ खुदावन, अपने सारे गुनाहों का, खुदावन बदियों का, बदकारियों का, ऐसे तमाम गुनाहों का खुदावन, ऐ खुदावन इकरार करती हूँ। खुदावन, हम सबको माफ़ कर, मुझे माफ़ कर खुदावन, और अपने नाम और जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत में भरने का फजल दे। खुदावन, हम सबको छूम और बड़ी बरकत दे। सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। गीत नंबर 291 निकाले गीतों की किताब में 291। क्रूस है तेरा निशान निशान, आगे बढ़ाए जवां जवां, पीछे न हटना कभी कभी, यीशु है तेरी चटाम चटाम। DJ
को संभाला है। हम उन लोगों के लिए भी खास दुआ करते हैं जिन दिनों कमजोरी की हालत में है, कुछ खानदान गमज़दा हैं, कुछ लोग बीमारी में मुब्तला हैं। खुदा अपना शाफी हाथ मिलकर बढ़ाए। हम दुआ करते हैं कि खुदा उन अजीज़ों को जो इन दिनों में कमजोरी की हालत में हैं, हम उनके लिए खास दुआ करें। दुआ मांगते हैं मिसेस मार्था मैनुअल के लिए, बेन रज़िया के लिए, भाई नेम बरकत के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, अर्नस के लिए, दानिश के लिए, शहनाज के लिए खास दुआ करते हैं। दुआ करते हैं कि खुदा मिसेस मैविश अदील को उसकी सेहत को बहाल करे। इरम सैमुअल के लिए खास दुआ करते हैं, उनके घराने के लिए दुआ करते हैं। मिसेस जस्टिन के लिए खुदा ने सो गई। हम इरम के साथ अफसोस का भी इजहार करते हैं, मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। उन्हें सदमे को बर्दाश्त करने के लिए अपनी मंजिल ताकत अता फरमाए। मिसेस तायरा अख्तर खुदा ने सो गई। हम भाई अख्तर होकर उनके घराने के लिए सभी की दुआ करते हैं। और वो लोग जिन दिनों में किसी न किसी वजह से परेशानी का शिकार हैं, हम दुआ करते हैं खुदा उनकी परेशानियों को, उनकी गमगीनी को खुशी में तब्दील कर दे, क्योंकि खुदा भी ऐसा करने पर कादिर है। आइए हम दुआ मांगे। कोई भी दुआ मेरा नहीं कर सकता है। अपना मुंह खोल तो मैं इस वक्त से दूंगा, जो लोग नहीं दुआ करते वो भी किया करें। शुक्रगुजार है कि खुदावंद तूने हमें मौका दिया कि हम तेरी हैकल में आकर तेरी हमदो सना करें और तेरी तारीफ करें, क्योंकि बाप तू ही तारीफ के लायक है। ऐ बाप, जितने भी खुदावंद तेरे खादम ने नाम लिए हैं, खुदावंद नाम बनाम सबके शिफा बख्श, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर दे। खुदावंद तू शिफा का मंगा है, तेरे हाथ में शिफा है। खुदावंद तुझे जड़ ठीक कर अपने घर में लेकर आ, और जितने गमजद खानदान है खुदावंद उनके साथ भी होना, उनकी रहनुमाई हिफाजत करना, तसल्ली बख्शना, क्योंकि तसल्ली तेरे पास है, किसी इंसान के पास नहीं है। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते तेरे खादम के लिए जो बड़ी खूबसूरत बातें हमारे लिए बयान करते हैं। और खुदावंद हम अपने खुदावंद इस खादम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अपना सारी बेसिया के साथ हो, सारे खादमों के साथ हो, अपने जलाल के लिए सब पर अपना रहम कर। इस दुआ और मुनाजात को तुम कबूल कर, मसीह के जलाल के पवित्र और खूबसूरत नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। आज सुबह हमारी नसीहत के लिए जो कलाम मुक़द्दस के हिस्से हैं, आज का पहला विरद यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 31वां बाब 31वीं आयत से लेकर 34वीं आयत। तसल्ली से खोले हवाला। बाइबल आपके सामने पड़ी है। जो बाइबल आपके सामने है, इसमें जो पेज नंबर है, सफ़र नंबर है, वो 746 746 सफ़ा पर यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 31वां बाब 31वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक हम देखेंगे। अगर आप में से कोई यह हवाला पढ़ना चाहे, तिलावत करना चाहे, अपना हाथ दिखा सकता है। अच्छा लगेगा। जो नहीं पढ़ते वो भी हाथ दिखाया करें। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 31वां बाब 31वीं आयत से 34वीं आयत। ठीक है बेटा। चलें, आपको मैं दूसरा वाला देता हूँ। इब्रानियों, बेटा आप लेने इब्रानियों। ठीक है, दिलशेर साहब आप यिर्मयाह का पढ़ें। आप पहला वाला पढ़े, दूसरा वो पढ़ेंगे। इब्रानियों 5वां बाब 5वीं आयत से 10वीं आयत।
इब्रानियों 5वां बाब 5वें से 10वें आयत, सफ़ा नंबर 214, 214, 214 नंबर सफ़ा। फिर हम एक गीत गाएंगे, स्वर्ग से अंधेल यीशु अग्नि सजीवन, मुझको तू दे यीशु भरपूर जीवन। 279, 279 गीत नंबर है। फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे, सफ़ा नंबर 96, 96। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 12वां बाब 20वीं आयत से 33वीं आयत तक। यूहन्ना 12वां बाब 20वीं आयत से 33वीं आयत, सफ़ा नंबर 96, 96। तसल्ली से हवाले खोलें ताकि आप देख सकें, पढ़ सकें। दोबारा दोहराना चाहता हूँ, यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 31वां बाब 31वीं आयत से 34वीं आयत, इब्रानियों 5वां बाब 5वीं आयत से 10वीं आयत, फिर यूहन्ना 12वां बाब 20वीं आयत से 33वीं आयत तक। देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगिरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा। अगरचा मैं उनका मालिक खुदावंद फरमाता है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूँगा और उनके दिल पर उसे लिखूँगा। मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे, खुदावंद फरमाता है। इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूंगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद के पाक कलाम में मरकूम है। उसी तरह मसीह ने भी सरदार काहिन होने की बुजुर्गी अपने तय नहीं दी, बल्कि उसी ने दी जिसने उसे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। चुनाचा वो दूसरे मकाम पर भी कहता है कि तू मुल्क सादिक के तौर पर अब तक काहिन है। उसने अपनी बशीरत के दिनों में ज़ोर ज़ोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदादर्सी के सबब से उसकी सुनी गई। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अब्दी निजात का बायस हुआ। और उसे खुदावंद की तरफ से मुल्क सादिक के तौर के सरदार काहिन का खिताब मिला। पाक कलाम का पढ़ा और सुना आप सबके लिए बायस बरकत हो।
बाब 20वीं आयत से लेके 33वीं आयत तक। और जो लोग ईद में प्रस्तश करने आए थे उनमें बाज़ यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिप्पस के पास जाकर जो बैतसैदा गलील का था आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। और फिलिप्पस ने आकर इंद्रियास से कहा। फिर इंद्रियास और फिलिप्पस ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज़ रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज़्ज़त करेगा। अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूँ। ऐ बाप मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुँचा हूँ। ऐ बाप अपने नाम को जलाल दे। बस आसमान से आवाज़ आई कि मैंने उसको जलाल दिया है और फिर भी दूंगा। जो लोग खड़े सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा, और उन्होंने कहा कि फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ। यीशु ने जवाब में कहा कि ये आवाज़ मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब दुनिया की अदालत की जाती है। अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं अगर ज़मीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। उसने इस बात से इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। और हैं लेकिन तेरा शुक्र अदा करते हैं, जब तेरी तरफ से हमें कुव्वत मिलती है उसमें फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने कलाम को समझने के लिए अपने पाक रूह की रहनुमाई अता फरमा। हाज़िर जमायत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इनके घरानों पर तेरी बरकत चाहते हैं। जो बच्चे बैरून मुल्क हैं, जो ख़ानदान बैरून मुल्क हैं, उनके लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं और उनके लिए बरकत, खुशी, राहत और तसल्ली चाहते हैं। गमज़दा ख़ानदानों को भी तू खुदा तसल्ली इत्मीनान अता फरमा, और जो कमज़ोर हैं उन्हें अपनी कुव्वत दे, अपने खादम को अपना कलाम दे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबको वेलकम करता हूँ कि आप लोग खुदा उनके घर में आए। ये ख़ास दिन है जिनमें से मैं और आप गुज़र रहे हैं। आज आगाही का दिन है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ख़ुद अपने लोगों को आगाह किया, बताया कि मैं किस तरह से मौत को बर्दाश्त करूँगा, किस तरह से कुर्बान होऊंगा। इसलिए ये मरकज़ी हवाला है आज का। आप सबसे दरख्वास्त की जाती है आप थोड़ी देर पूरी तवज्जो दें ताकि आप इन सारी चीज़ों के, इन बातों को समझ सकें। हम उन घरानों के साथ अफसोस का इजहार करते हैं और दुआ गए कि खुदावंद हम सब को तसल्ली दे और ख़ानदान के लोग इस साल में भी खुदावंद में मसरूर हों। आज हम देखते हैं पहला हवाला जो यिर्मयाह का है, क्योंकि यिर्मयाह का जो आज का हवाला है जो तिलावत किया गया उसका तल्लुक़ मेरे और आपके साथ ख़ास है, ख़ानदानों के साथ, कलीसिया के साथ, खुदा के लोगों के साथ, बहाली के साथ, खुशहाली के साथ। और मैं और आप हम सब इन दिनों में न सिर्फ हम बल्कि हमारी हुकूमत, हमारे लोग, अख्तियार वाले लोग, वो भी बहाली चाहते हैं। जिन मुश्किलात का वो शिकार हैं उनसे आज़ादी, रिहाई और छुटकारा चाहते हैं। मैं और आप भी जिन मुश्किलात में मुब्तला हैं, मुझे बताएं, आपको अपना बताएं, किन किन मुश्किलात का सामना मैं और आप दिन में करते हैं। इसके लिए आज का हवाला मुझे और आपको नसीहत देगा, तसल्ली भी देगा। जो हवाला पढ़ा गया 31वां बाब 31वीं आयत, तो गौर से देखें ज़रा। देख वो दिन आते हैं
खुदावंद फरमाता है, जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। क्या करूंगा? अहद का पता क्या होता है? दो फरीकैन के दरमियान एक बयान हल्फी होती है और उस पे कायम रहना होता है। नया अहद। किसकी कोई यहाँ बच्चा बैठा है जिसकी शादी हुई है? हाँ, ये बैठी है, ये बच्ची, लेंट से पहले इसकी शादी थी। एक अहद हुआ कि मैं हालात जैसे भी हों, मुश्किल हो, परेशानी हो, दुख हो, बीमारी हो, अमीरी हो, गरीबी हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये अहद है, ये कवर्नेंट है, ये टूटता नहीं है। लेकिन जो अहद खुदा मेरे साथ और आपके साथ करता है वो पाक अहद है, वो पाक है। उसको तोड़ने की बहुत बड़ी सज़ा है। फिर देखें, यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। इससे पहले अहद हुए, खुदा ने अब्राहम के साथ भी अहद किया था और खुदा और अब्राहम अपने अपने अहद पर कायम रहे। लेकिन इंसान एक ऐसी चीज़ है, अब्राहम भी इंसान था, लेकिन मैं और आप अपनी तस्वीर यहाँ से देखेंगे, मैं भी उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया। ये फ़र्क अहद है जो फोर फादर के साथ किया, बाप दादा से किया, वो फ़र्क था। अब जो मैं अहद बांधूंगा वो फ़र्क है, उस अहद के मुताबिक नहीं जब मैंने उनके बाप दादा से किया, जब मैंने उनकी दस्तगिरी की थी। दस्तगिरी का पता क्या होती है? एक ज़बूर नहीं हम गाते, खुदाया तू करेगा दस्तगिरी आप मेरी भी। वो मेरी और आपकी दस्तगिरी करता है, वो मेरा हाथ थाम लेता है, वो मेरी मदद करता है, वो हमारी हमायत करता है। हम जैसे भी हों, जिस हालत में भी हों, वो हमारी हमायत भी करता है, हमारा हाथ पकड़ लेता है, ख़तरा से बचा लेता है, मुश्किल से बचा लेता है। इसलिए वो कहता है मैंने उनकी दस्तगिरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे अहद को तोड़ा अगरचे मैं उनका मालिक था। ये मेरी और आपकी हालत है, हम भी तोड़ देते हैं। मैं भी ऐसे ही। कहता मैंने उनकी बड़ी मदद की, उनका हाथ थामा, उनको लेके चला, लेकिन फिर भी उन्होंने वो अहद तोड़ा। फिर उन्हें सज़ा मिली, फिर वो सीरी में गए ना, मुश्किल में गए, परेशानी में गए। हालांकि खुदा ने उनको निजात दी, रिहाई दी, छुटकारा दिया मिस्र की ग़ुलामी से, उसके बावजूद उन्होंने अहद तोड़ा। ये खुदावंद फरमा रहा है। बल्कि वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से फिर बांधूंगा। ये वो अहद है। अभी नया अहद जो मैं इन दिनों के बाद इसराइल घराने से बांधूंगा, खुदा फरमाता है मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूँगा और उनके दिल पर उसे लिखूँगा, और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। दिल पर लिख दूँगा। दिल की तख्ती है, सबकी है। अब मुझे नहीं पता कि अब मेरे दिल की तख्ती पे क्या कुछ लिखा हुआ है। मुझे पहचानने की ज़रूरत है और आपको भी पहचानने की ज़रूरत है। ये शरीयत, ये ला, ये कानून मैं उनके दिल में लिख दूँगा। जैसे कायद है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना कर सकूं। काश ये मेरे और आपके दिल में हो। उन दिनों के बाद मैं ऐसा करूँगा, लिखूँगा, दिल पे लिखूँगा, ताकि फिर वो लोग समझें कि मैं उनका खुदा हूँ और वो मेरे लोग हैं। आप उसके लोग हैं, आप वीआईपी लोग हैं। इसके दो तर्जमे मैं करता होता हूँ।
ایک تو VIP لکھا تھا نا, ویری امپورٹنٹ پرسن, اہم شخص ہے, ان کا راستہ بھی علیحدہ ہوتا ہے, ان کی ٹیبل بھی علیحدہ ہوتی ہے نا, ویری امپورٹنٹ پرسن. میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں, اگر یہ باتیں جو یہاں لکھی گئی ہیں میں اور آپ ان پر عمل نہیں کرتے, پھر ہم ہیں تو VIP, لیکن ہم ویری اگنورڈ پرسن ہیں. خدا نہ کرے میں اور آپ ایسے ہوں کہ خدا مجھے اور آپ کو اگنور کر دیں, مجھے اور آپ کو رد کر دیں. ہے VIP, نام VIP ہے, لیکن اگنورڈ. ایسے لوگ خدا نہ کرے. اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے کس جگہ پہ کھڑے ہونا ہے, اور پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو کوئی یہ تعلیم نہیں دیں گے کہ خدا ان کو پہچانو. ایک وقت تھا سٹارٹ میں جب بردرن لوگ آئے, ایک سیلاب آیا توبہ کا, توبہ کرو. وہ زبردستی کرواتے تھے توبہ, کان پکڑ کے کرواتے تھے توبہ, اور ہر شخص کو کہتے تھے کہ توبہ کریں, اور پھر وہ ان کو بپتسمہ بھی دیتے تھے. جہاں بھی انہیں پانی مل جاتا تھا, حوض نہیں بنے ہوتے تھے, اب تو ہمارے پاس خوبصورت حوض ہیں, اور جہاں بھی گاؤں کے قریب بھی کہیں پانی ہوتا تھا, نہر کا پانی آتا ہوتا تھا, تو وہ دے دیتے تھے. گاؤں سے ایک فیملی پیدل چلتی آ رہی تھی, اور لوگ وہاں پہ خدا کا کوئی خادم انہیں بپتسمہ دے رہا تھا. گھر آ کے کہتی ہے آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سارے, جاؤ ادھر چلو. وہ تو بیچارے ان کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں, پھر بھی انہیں پانی میں گوتے دے رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں, ڈبو رہے ہیں, جائیں جا کے اس کو بچائیں. ایک ایسی ہوا چلی تھی, اس کا فائدہ بھی ہوا, اس کا نقصان بھی بہت ہوا. وہ ایسے گھروں میں نہیں جاتے تھے جن کے گھر میں ٹی وی ہوتا تھا, ان کے گھر میں دعا نہیں کرنے جاتے تھے کہ یہ ابلیس ہے, شیطان ہے. جو وقت گزرتا گیا پھر ان کے گھروں میں بڑے بڑے آ گئے. بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کلام اٹل ہے, یہ تبدیل نہیں ہو سکتا, مجھے اور آپ کو تبدیل کر سکتا ہے. پھر وہ غلط تعلیم نہیں دیں گے اپنے اپنے لوگوں کو, یہ نہیں کہیں گے خدا کو پہچانو, اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے پہچان لیا, اس لیے کہ میں نے ان کے ساتھ نیا عہد باندھا. اب وہ کسی کو نہیں کہیں گے کہ خدا کو پہچانا, کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے. خداوند فرماتا ہے اس لیے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ میری اور آپ کی بد کرداری خدا معاف کر دے اور پھر ان پر نظر نہ کرے. پھر اس نے ایک نیا عہد باندھا. وہ عہد کون سا ہے؟ پھر اس نے ایک نیا عہد اپنے بیٹے کے وسیلے سے انسان اور خدا کے درمیان ایک عہد باندھا, یسوع مسیح کے وسیلے سے. وہ میرا اور آپ کا درمیانی بن گیا. یسوع مسیح انسان اور خدا کے درمیان پل بن گیا, عہد ہو گیا نیا, جو پاک عہد ہے, جو ٹوٹ نہیں سکتا. وہ لکی لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے لیے یہ عہد ہوا, فرما برداری کے سبب سے ہوا, عاجزی کے ساتھ ہوا, انکساری کے ساتھ ہوا. اس لیے آج کی نوجوان نسل سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ فرما برداری کریں گے پھر آپ ایک مقام حاصل کریں گے. یسوع المسیح نے فرما برداری کی. گتسمنی باغ ہے نا, ذکر ہے نا, وہاں پہ جانکنی کی حالت میں خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. یہ ہے فرما برداری. جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اس فرما برداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو پھر یہ نیا عہد جو ہے یہ آپ کے لیے ابدی جیون, لاسانی زندگی, ہمیشہ کی زندگی کا سبب بن جائے گا. اور یہی بات مقدس یوحنا انجیل مقدس میں پاک روح کی رہنمائی میں میرے لیے اور آپ کے لیے کہتے ہیں کہ آپ پریشان ہوتے ہیں, مایوس ہوتے ہیں, اس موت سے ڈرتے ہیں. میں اکثر میموریل سروس پہ, ڈیتھ پہ کہتا ہوں کہ اس موت سے نہ ڈریں. یہی بات آج کے اس کلام کے حصے میں یوحنا
रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में है कि इस मौत से ना डरें। ये मौत परेशान होने वाली चीज़ नहीं है, मत घबराएं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता, वो तो अकेले ही रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं ऐसे लोगों से वाकिफ़ हूँ। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त जवानी में खुदा में सो गए। सुबह इतवार का दिन था, कलाम तैयार किया, बड़ा खूबसूरत हवाला, लेकिन वो सुबह उठे नहीं, खुदा में सो गए। शायद उसकी खिदमत की वसीले से इतने लोग यीशु मसीह के पास ना आते, हमेशा की ज़िंदगी ना पाते, जितने उसकी जिस्मानी डेथ के बाद यीशु मसीह के पास आ गए। उसकी मौत जो जिस्मानी मौत थी, उसकी उस मौत ने लोगों के जहनों को बदल दिया, उनकी सोच को बदल दिया, उनके रवैये को बदल दिया कि इतनी मुख्तसर ज़िंदगी है कि खुदा का खादम पादरी बन जाए, सुबह के लिए कलाम तैयार करे, बाइबल बंद करके सराहना रख के सो जाए और सुबह उठे ना और किसी को पता भी ना चले। ये मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, मोहब्बतें उधार ना करें। जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल आता है। इसलिए हम सब के लिए तसल्ली की बात है कि जो अपनी जान को अजीज़ रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से दावत रखता है वो उसे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज करता है। महफूज का लफ्ज़ इन दिनों में तो बहुत आपने सुना होगा टेलीविज़न पे। आजकल के जो काजी हैं, आजकल के जो जज हैं, वो कहते हैं कि अब हमने गवाहियाँ शहादतें सुन लिया और जो फ़ैसला क्या कर लिया, महफूज कर लिया है। मैं और आप हमेशा की ज़िंदगी को महफूज करें भाई। मेरे लिए और आपके लिए ये अहम चीज़ है, इस जिस्म की ना परवाह करें। इसने फना होना है, इसने मरना है, इसने डेड हो जाना है, लेकिन जो मेरे और आपके अंदर रूह है वो ज़िंदा रहती है। खुदावंद यीशु मसीह मेरा और आपका निजात दहिंदा अपनी मुबारक ज़बान से खुद कहता है कि जो अपनी जान को अजीज़ रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से दावत रखता है वो उसे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी ये है इज़्ज़त, वरना कोई हाल नहीं है हमारा कोई हाल नहीं, बुरा ही हाल है। ये इज़्ज़त उसकी तरफ से है। अगला हिस्सा चंद मिनट और। अब यीशु मसीह ने जो आगाही दी, जो आज का दिन है, बता दिया अपने साथियों को। अभी कितने दिन रहते थे स्लीप पर जाने से पहले ही बता दिया, अब मेरी जान घबराती है। बस मैं क्या कहूँ, अब आप मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुँचा हूँ। अब आप अपने नाम को जलाल दे। बस आसमान से आवाज़ आई कि मैंने उसको जलाल दिया और फिर भी दूंगा। यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि क्या मैं अपनी जान बचाऊं? नहीं, मैं जिस काम के लिए आया हूं वो पूरा हो। जो लोग खड़े सुन रहे थे उन्होंने कहा बादल गरजा, और उन्होंने कहा फरिश्तों से हम कलाम हुआ। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि ये आवाज़ मेरे लिए नहीं, आपके लिए है भाई। ये तुम्हारे लिए आवाज़ ऊपर से आई है। अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा। कब? दुनिया का सरदार अभी है कि चला गया? इब्लीस है कि नहीं? अभी दुनिया में ही है। उसको पकड़ता है जो खुदा के लोग हैं, जो उसके करीब जाते हैं, जो उसकी मनादी करते हैं, जो उसका चर्चा करते हैं, जो उसकी बिशारत देते हैं। इब्लीस मैंने एक शख्स की चंद बातें कल ही सुनी और नोट की इब्लीस के तलक से। वो कहता है कि आज के दौर में इस वक्त हम सब खबासत का शिकार हैं। इतना बड़ा लफ्ज़ कहाँ से निकला? बड़ा खबीस से। खबासत में मुब्तला है, नजासत में मुब्तला है। नजासत का मतलब आता है, बोल दे क्या? गंदगी।
नजासत में हैं, शरारत में मुब्तला हैं, इब्लीसियत में हैं। ये लफ्ज़ है, उससे सुना मैंने, टेलीविज़न से सुना मैंने, आप भी सुन सकते हैं। इब्लीसियत का शिकार हैं हम सब लोग, हमारा मुल्क, हमारे लोग, हमारे इख्तियार वाले लोग, हमारे लीडर। वो एंड में कहता है क्या हमने कोई ठेका लिया हुआ है कि इन्हीं चीज़ों से ज़रबे खाएं, इन्हीं चीज़ों की वजह से ज़ख्मी हो हर रोज़? किसकी वजह से? खबासत की वजह से, नजासत की वजह से, शरारत की वजह से, इब्लीसियत की वजह से हम इसके मुब्तला हो जाएं और ठोकरें खाएं। क्यों? यीशु मसीह ने भी यही उनसे कहा। अब दुनिया की अदालत की जाती है और दुनिया का सरदार इब्लीस निकाल दिया जाता है। मैं अगरचे ज़मीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, सलीब पर चढ़ाया जाऊंगा, तो सबको अपने पास खींचूंगा। उसने इस बात से इशारा किया कि मैं किस मौत से, कोई अच्छी मौत नहीं है, ये अच्छी मौत नहीं है, लेकिन ये मौत उसने मेरे लिए और आपके लिए कबूल की और सरदार काहिन बना। मैं और मेरे पादरी साहबान या बिशप साहबान जो कपड़े पहन के ये इधर आ जाते हैं ना, ये वही कपड़े हैं, लेकिन हम तो कहानत का काम करते हैं। लेकिन किस तरह से वो सरदार काहिन बना, जो हवाला पढ़ा गया इब्रानियों का, एक ही आयत पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं मैं लूँगा। 4थी आयत, और कोई शख्स अपने आप ये इज्जत अख्तियार नहीं कर सकता, ये कपड़े नहीं पहन सकता हर कोई, जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से ना बुलाया गया, तब तक नहीं पहन सकता, इज्जत नहीं हासिल कर सकता। इसी तरह मसीह ने भी सरदार काहिन होने की बुजुर्गी अपने तय नहीं दी, बल्कि उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। ये उसने दिया मुझे, ये अख्तियार, ये इज्जत, ये रुतबा। कैसे दिया? चुनांचे वो दूसरे मकाम पर भी कहता है कि तू, ये लफ्ज़ है मलके सिदक, ऐसा शख्स जो बिन बाप बिन माँ था और इसने भी दायगी दी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसने भी दायगी दी। दायगी दिया करें, दिया करो तुम्हें भी, ये उसका हिस्सा है। इसकी वजह से खुदा के कलाम में लिखा है वो मलके सदक के तौर पर अबद तक काहिन है, और उसी ने अपनी बशरियत के दिनों में ज़ोर ज़ोर से पुकार कर और अंशु भा कर उसी से दुआएं की, इल्तिजाएं की, जो उसको मौत से बचा सकता था। खुदा तो उसको बता सकता था ना, बेटा था उसका, और खुदा तरसी के सबब से इसकी सुनी भी गई। क्या हुआ? बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर फर्मा बरदारी सीखी। बच्चों, नौजवान बेटे बेटियों, फर्मा बरदारी सीखो। अगर दुख उठा के भी सीखनी पड़े तो फर्मा बरदारी ज़रूर सीखें। उसने दुख उठाकर फर्मा बरदारी सीखी, कामिल बनकर अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अबदी निजात का बायस हुआ, और उसे खुदा की तरफ से मलके सदक के तौर पर सरदार काहिन का खिताब दिया गया। ये खिताब ऐसे नहीं मिलते, नकल करने से खिताब नहीं मिलते कि उसने ये नाम आपके आगे लिखा और मैं भी लिख दूँ। बिल्कुल नहीं, उसने दुख उठा कर फर्मा बरदारी से मलके सदक के तौर पर सरदार काहिन ठहरा। मेरी ये दुआ है कि खुदा आपको अपने घरों में, ख़ानदानों में जो रुतबा, जो इस्तेहकाक, जो हक़, जो इज़्ज़त खुदा ने आप सबको दी है, उसको हमेशा कायम रखने के लिए खुदावंद से वफ़ादारी और उस अहद को कायम रखें जो खुदा ने मेरे साथ और आपके साथ अपने बेटे हमारे निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से दिया। क्योंकि पहला अहद टूट गया था, वो अहद टूट गया था। क्यों? खुदा और इब्राहिम का दरमियान अहद था, वो गुनाह की वजह से ये रिश्ता टूट गया। जिस तरह आदम में सब मरते हैं, इसी तरह मसीह में सब ज़िंदा किए जाएंगे। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत है। हम दुआ मांगें। आप में से कोई भी दुआ में रहनुमाई कर सकता है। चंद अल्फाज में कलाम के लिए दुआ करें, शुक्रगुजारी करें।
खुदावंद आप अपना हाथ बढ़ा इन हदियों की, नजरानों की, शुक्रगुजारियों की तकदीस कार, इसमें तेरे लोगों की शुक्रगुजारियाँ हैं, दरख्वास्तें हैं, मन्नतें हैं, मना जाते हैं। इसके एवज़ अपने लोगों को रूहानी जिस्मानी बरकतों से मालामाल कर, इनके घरों में, ख़ानदानों में किसी चीज़ की कमी ना आने पाए। यह हदिया तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। को हर किस्म की बुत परस्ती और पीठ परस्ती को परस्ती बताया करते हैं कि आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, खुदावंद की सच्ची पर सच्ची तौर पर ईमान रखते हैं, इस बात का अहद करते हैं कि आप इसकी तरबियत खुदावंद के कलाम के मुताबिक करें। आसमानी बाप इस वक्त बड़ी आज़ी सारी बीवी और फरोती के साथ मिस्टर मिसेस अवैस पर और ख़ास तौर पर जैनेट पर तेरी बरकत चाहते हैं। हम तेरी मिन्नत करते हैं तो हम सब पर इस खानदान पर रहम कर, जो कुछ इस वक्त हम यहाँ खुदावंद की सच्ची हिदायत के मुताबिक करते हैं, उसके वसीले से तो आपकी काम कर, अपने लोगों के वसीले से हम सब पर इस खानदान पर इस पानी पर अपनी बरकत नाज़िल फरमा बख्शे कि ये बच्ची जैनेट पानी और मुझसे नए सिरे से पैदा हो, ताकत तेरे वफादार लोगों में शुमार हो। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। यानी हम खुदा के खालिक होते हुए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा के नाम से तेरे माथे पर तस्दीक की मोहर लगाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि आज से तू खुदावंद की सच्ची की हो गई है। खुदावंद की बरकत है, अपना चेहरा पर जलवा कर फरमाए, तेरी उम्र को दराज करे, बड़ी होकर खुदावंद की सच्ची के नाम को इज्जत और इकरार देने का वसीला है। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जिसके वादे ना सिर्फ हमसे हैं बल्कि हमारी बात से भी हैं। हम तेरी मिन्नत करते हैं, तेरा कुछ चैलेंज फोर्स को से तकवीत दे कि ये बच्ची खुदावंद की सच्ची डर पकड़ कर ईमान और मोहब्बत में बढ़े, साल ब साल उसकी रहनुमाई कर, बख्शे इनको वक्त है जब ये अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करते हैं। तेरे बेटे यीशु को अपने शख्स निजात दहिंदा कबूल करके हमेशा की जिंदगी पाए, पाक में इसके पास आकर खुदावंद के बदन और खून में शिरकत पाए और बड़ी दिलेरी के साथ लोगों के सामने उसी का इकरार करे। ऐ बाप, जिसके इकलौते हकीकी बेटे ने नासरत के खानदान में परवरिश पाई, हम जैनेट के घर वालिदैन बुजुर्गों के लिए दुआ करते हैं, बख्श दे कि इनका घर हमेशा मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान से मामूल रहे और इसके वालिदैन इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की फिक्र करें, बख्श दे कि अच्छी तरबियत, अच्छे नमूने से वालिदैन इसको खुदावंद की सच्ची इत्मीनान और फरमाबरदारी में इसकी परवरिश करें, ताकि इसकी वसीले से तेरा बेटा यीशु मिलान पाए। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। वसीले से आई यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सबकी रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिल में वादा पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और रज़ली खुदा, तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, नौजवान नस्ल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए, डायसिस ऑफ रायवेंड के लिए, बिशप ऑफ रायवेंड के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम मसीही इदारों के लिए, सेंट जॉन चर्च की सारी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रम फ़रिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्द व ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस कद्दूस, सब बोले खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममनून है। आए खुदावंद ताला, तेरा ही जलाल हो। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है, आलम वाला पर पहुँचे। वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे, उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा, मौत को तेरे सामने याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, हम सब पर, पूरी कलीसिया पर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया
کہ جب تک میں پھر نہ آؤں تم ایسے ہی کرتے رہنا۔ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اسی طرح کھانے کے بعد شکر کر کے ان کو دیا اور کہا کہ تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ آمین۔ اے خداوند، ہم تیری موت کو یاد کرتے ہیں، ہم تیرے جھوٹنے کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیری جلدی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ اے مسیح، تیرا ہی جلال ہے۔ جس طرح ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا اور ہمیں سکھایا ہے، ہم سب مل کر کہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز ٹوٹیا آج ہمیں دے اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں۔ آئے ہم خداوند کے میز کے پاس آنے کی دعا مل کر کہیں، اے رحیم خداوند، ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری گناہ گور بڑے رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیرے اس میز کے پاس آنے کی جرت کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنے، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے آئے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ آلودہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کی جائیں، اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسے۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے، تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے یسوع مسیح، تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے یسوع مسیح، تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اپنے اطمینان۔ اے ہم بھی ایک دوسرے کے لیے دعا مانگے، اطمینان کی دعا دے اور کہیں، خداوند آپ سب کو اطمینان عطا فرمائے، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہو کر روحانی تازگی حاصل کریں۔ خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون جو تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کا خدا یسوع مسیح کا بدن اور خون جو میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب جب کہ ہم ایمان سے مسیح کے بدن اور خون کے پاک ساکرامنٹ میں شریک ہوئے ہیں، رکیں تو آئے سب مل کر شکر گزاری کریں۔ قادر مسیح خدا، ہمارے آسمانی باپ، تو جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خدا بطور اپنے بدن قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بے شمار بدن اور خون کی ہماری پراپت کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے۔ ہم ان بخشوں کے لیے جو بیان سے ماہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزارتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری مقبول عبادت ہے۔ ہمیں بدل بخش تاکہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں بلکہ اگر نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور کامل بندی سیکھیں اور اس جہان میں کسی طرح تیری بڑوں گزاری کریں۔ آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب قدر سمیت خوشی منائیں ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو تیرے اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا جیتا اور سلطنت کرتا ہے۔ حمد اور تمجید، حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت آمین۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے
हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स की बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अज़ीज़ व क़ारब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, जंगज़दा इलाकों के साथ, गमज़दा ख़ानदानों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से